السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اقرا آن لائن کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پیارے بچوں، کیسے ہو؟ پڑھائی کے ساتھ میں مزے لے رہے ہو؟ آپ لوگوں کا ہی زمانہ ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو تعلیم مہیا ہو رہی ہے، مزے کے ساتھ میں سیر کرتے ہوئے، ہے نا؟ کیونکہ آپ ہی کیا ہے؟ قوم کے مستقبل ہیں۔ ملک کی باغ دوڑ، ملک کی صنعتوں کو آپ کو ہی ترقی کرنا ہے، آگے چل کر بہت بڑے صنعت کار بننا ہے، ڈاکٹرز بننا ہے، انجینئرز بننا ہے، دین اور دنیا میں آپ کو ترقی کرنا ہے نا؟ کیونکہ آج کل جو ہے اقتصادی بازاروں میں یعنی اوپن مارکیٹ دنیا جو ہے ہماری کھلا بازار بن گئی، ایک عالمی کنبہ بن گئی ہے۔ تو ہمارے اقتصادی بازاروں میں خاص کر جو ہمارے صنعت کار جو ہے اور ان کی صنعتیں بہت ہی اہم مقام رکھ رہے ہیں، ہے نا؟ جس کو ہم انٹرپرینرز کہتے ہیں، صنعت کار کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں صنعت کار کس کو کہتے ہیں؟ یا صنعت کار کی خاصیتیں کیا ہیں؟ اس کی قابلیتیں کیا ہیں؟ خصوصیات کیا ہیں؟ صنعت کار کا کام کیا ہوتا ہے؟ اور ہندوستان کے بہت بڑے صنعت کار کون کون ہیں؟ چند ایک کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ چلیے اس کے بارے میں اور مختصر جاننے کے لیے یا تفصیلی جاننے کے لیے چند ایک کے بارے میں مختصر طور پر، چند ایک کے بارے میں ہم تفصیلی طور پر بھی جانتے چلے جائیں گے۔ تو اس کے لیے آج ہم معاشیات تجارتی تعلیم کا باب باصلاحیت کاروبار یا باحوصلہ کاروبار، اس کے بارے میں پڑھائی کریں گے اس کلاس میں۔ تو سب سے پہلے میرے عزیز طلبہ، باصلاحیت کاروبار کس کو کہتے ہیں یا باحوصلہ کاروبار کس کو کہا جاتا ہے یا صنعت کار کس کو کہتے ہیں، یہ دیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، صنعت کار یہ لفظ جو ہے فرانسیسی زبان کے لفظ رینٹا فرینڈ سے لیا گیا ہے۔ رینٹا فرینڈ یعنی کیا ہے؟ یعنی ایک سرگرمی کو اپنے ہاتھ میں لینے والا، ایک ایسا شخص جو ایک سرگرمی کو، ایک کام کو اپنے ہاتھ میں لینے والا۔ یعنی صنعت کار کون رہتا ہے؟ ایک ایسا شخص رہتا ہے۔ آپ میں بھی ایک صنعت کار موجود ہے، آپ کے اندر بھی ایک صنعت کار ہے، آپ بھی بہت کریٹیو ہے، جو اپنے پروجیکٹ رہتے ہیں بہت ہی کریٹیوٹی سے بناتے ہیں نا، یہ بھی تو ایک صنعت ہی ہے۔ تو صنعت کار کیا کرتا ہے؟ ایک نئے خیال کے ساتھ اپنی عادت کو کاروبار کی شکل دیتا ہے۔ اس کے اندر جو خیال رہتا ہے، اس کے اندر جو کریٹیوٹی رہتی ہے، تو اس خیال کو، اس کریٹیوٹی کو، اس کی وہ عادت کو ایک کیا کرتا ہے؟ ایک کاروبار کی، ایک صنعت کی شکل دیتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ کو مہندی ڈیزائن کا شوق ہے، تو اسی میں آپ ترقی کرتے کرتے جو ہے اس کو ایک تجارت، اس کو ایک کاروبار کی جو شکل دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ایک صنعت کار ہے۔ اسی لیے میں پہلے کہی کہ آپ میں بھی ایک صنعت کار موجود ہے، آپ کے اندر بھی ایک صنعت کار ہے۔ تو صنعت کار ایک نئے خیال کے ساتھ اپنی عادت کو ایک کاروبار کی شکل دیتا ہے۔ تو صنعت کار یہ لفظ کہاں سے لیا گیا ہے؟ فرانسیسی زبان کے لفظ رینٹ فرینڈ سے لیا گیا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی ایک ایسا شخص جو ایک سرگرمی کو اپنے ہاتھ میں لینے والا ہے۔ تو صنعت کار کون ہوتا ہے؟ ایک سرگرمی کو اپنے خود کے ہاتھوں میں لے کر خود اپنے کانفیڈنس سے اس کام کو انجام دینے والا، یعنی ایک نئے خیال کے ساتھ اپنے اندر کی عادت کو کاروبار کی شکل دیتا ہے۔ صنعت کار نئی چیزوں سے متعلق اندازہ لگا کر ان کو مارکیٹ فراہم کرتا ہے کہ اس طرح سے کریں گے تو کیسا ہوگا، اس طرح سے کریں گے تو کیسا ہوگا۔ تو نئی چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ اس کا ایک اندازہ لگاتا ہے اور ان چیزوں کو مارکیٹ فراہم کرتا ہے۔ نئی تبدیلیوں اور نئی ترقی کا تصور کر کے موقع کا جائزہ لیتے ہوئے ایک منظم طریقے سے نئی صنعت کا آغاز کرتا ہے۔ تو ایک تخلیق کار بھی ہوتا ہے۔ صنعت کار جو ہوتا ہے، یہ شخص کون ہوتا ہے؟ ایک تخلیق کار ہوتا ہے۔ اپنے اندر وہ ایک نئے خیال کو رکھتا ہے، ایک نئی تخلیق کو رکھتا ہے اور حالات کا جائزہ لیتا ہے کہ اب کون سی چیز کو مارکیٹ میں لائیں گے تو وہ چیز جو ہے زیادہ فروخت ہوگی،
लोगों की पसंद क्या है, नापसंद क्या है, कौन सी चीज़ को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किस तरह से कौन सी चीज़ बनाएंगे, कौन सी चीज़ की तख्लीक करेंगे तो उसको ज़्यादा मार्केट फराहम होगी। जिस तरह से अब मोबाइल कंपनियां रहते हैं, एक ने एक बनाए तो एक दूसरा उससे अच्छा बनाता है, दूसरा उससे अच्छा बनाते जाता है। तो एक कौन है, ये सनतकार है, जो कि मौके का जायज़ा लेते हैं कि अब लोगों की, अब सारिफीन की, अब अवाम की यहाँ पे क्या सूरत हाल है, कौन सी चीज़ उनको पसंद है। तो नई नई तब्दीलियां लाते हैं, नई नई तरक्की का तस्वुर उनमें रहता है। तो मौके का जायज़ा लेते हुए एक मुनज़्ज़म तरीके के ज़रिए से अपनी एक नई सनत का आगाज़ करते हैं, सनत की तख्लीक करते हैं। यानी एक बहुत ही बेहतरीन जुमले में उनको कह सकते हैं कि कुछ ना होने वाला कुछ होने के लिए की जाने वाली समझदारी की सलाहियत रखते हैं। हम लोग चंद एक उसमें से सोचते हैं कि नहीं नहीं इस तरह से करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं कर सकते, नुकसान हो सकता है, इस तरह से सोचते रहते। बट ये लोग क्या करते हैं, उस सरगर्मी को अपने हाथ में लेते हैं। कुछ ना होने वाला भी है तो कुछ होने के लिए की जाने वाली जो समझदारी, नहीं ये नहीं होता करके जो अगर नहीं ये होगा, ये मस्ट एंड शुड, ये होगा ही, इस तरह से कहकर उस काम को अंजाम देते हैं। उस काम की एक सनत को यहाँ पे यानी अपने ख्याल को जो रहता है, अपने तस्वुर को रहता है, अपनी तरक्की की जो तस्वुरात उनमें रहते हैं, उसको लेते हुए अपनी समझदारी के साथ, सलाहियत के साथ जो शख्स आगे बढ़ता रहता है वो क्या है, सनतकार होता है। समझ में आया? सनतकार किसको कहते हैं? यानी अपने अंदर एक नए ख्याल को रखता है, एक अपनी उसकी आदत रहती है, यानी नई नई तब्दीलियों को चाहने वाला रहता है, तरक्की के बारे में सोचने वाला रहता है। कुछ ना होने वाला है कहते हुए भी, लोग कहते हैं तो भी वो कुछ होगा ही करके कर दिखाने की एक जो ताकत उसमें रहती है, कॉन्फिडेंस उसमें रहता है, समझदारी की जो सलाहियत उसमें रहती है, उसको लेकर आगे बढ़ने वाला शख्स कौन होता है? सनतकार, या उसको हम बासलाहियत कारोबार भी कहते हैं। तो ये बासलाहियत कारोबार जिसको हम कह रहे हैं, अब इस डेफिनेशंस के जरिए से ही जो है वो कौन है करके आपको समझ में आया होगा। फिर भी जो है एक सनतकार के हम खुसूसियात क्या होते हैं करके मुख्तसर तौर पर देखेंगे। कौन होता है सनतकार की खुसूसियात क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी खूबियां पाई जाती हैं करके। तो सनतकार जो है एक तख्लीक कार होता है, यानी चीज़ों को क्या कर रहा है, वो तख्लीक दे रहा है, नई नई चीज़ों को बना रहा है, नई नई तब्दीलियां ला रहा है, क्रिएटिविटी उसके अंदर है, फ़आल रहता है। दूसरी खूबी इसकी खासियत है कि वो फ़आल यानी हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा काम में रहता है। आज एक चीज़ है, दूसरी उस चीज़ को और हम तरक्की देंगे और तरक्की देंगे, उसमें मज़ीद जो है यहाँ पे निखार लाते चले जाएंगे। अब जिस तरह से पहले के मोबाइल्स में अब के मोबाइल्स में देखो कितनी तरक्की, कितना फ़र्क हो गया है। तो इस सनत का जो रहते हैं हमेशा फ़आल में रहते हैं, यानी हमेशा काम में रहते हैं, क्रिएटिविटी उनमें रहती है, एक्टिव रहते हैं हमेशा, और ख़ुद एतमादी उसमें रहती है, यानी वो खुद पर उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस रहता है, भरोसा रहता है, वो खुद पे भरोसा करके कुछ ना होने की सूरत में भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं। तो खुद एतमादी उनके अंदर रहती है। और जमात बंदी, यानी वो अपने जो वर्कर्स रहते हैं उस सनत में काम करने वालों को लेकर एक जमात बंदी की, एक मुनज़्ज़म प्लान के साथ में क्या करते हैं, वो काम को करते रहते हैं। वी आर यूनाइटेड, इस तरह से जो है सबको लेकर चलते हैं। वो खासियत सनतकार में पाई जाती है और मसाइल का हल उनके पास में रहता है। जब भी मसला अपनी सनत की शुरुआत के मरहले में बोलो या बाद में बोलो जो पेश आते रहता है या इब्तिदा में, उस मसाइल का हल भी उनके पास में पाया जाता है कि किस तरह से समझो। अब एक कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट यहाँ पे एक चलो अब मोबाइल का ही ज़माना, एक मोबाइल यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किए हैं, तो सब जो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नए लोगों की पसंद इस तरह से, नए उसके साइज़ को फ़र्क करना है या बड़ा करना है, छोटा कर, इस तरह से लोगों की जो है बहुत सी मांगे होती रहती है। तो मसला ऐसा पेश आया है कि वो मोबाइल की जो है यहाँ पे जो फ़रोख्त होने था, जो सेलिंग मार्केटिंग थी, वो डाउन हो गई है। तो अब वो मसला खड़ा हुआ, तो उस मसले को हल करने के लिए उस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, और नफासत लाते हैं, और अच्छा ही लाते हैं, और खूबियाँ बनाते हैं, इतना अच्छा बनाते हैं कि लोग उसको ख़रीदने पर राज़ी हो जाएं। और उसके साथ साथ कायदाना सलाहियत उनके अंदर रहती है, यानी लीडरशिप रहती है, क्योंकि उनके अंदर जो खुद एतमादी रहती है वो एक कायदाना सलाहियत को और फ़रोग़ देती है। एक रहबर बनकर, एक लीडर बनकर, एक जमात को लेकर चलने वाला शख्स कौन रहता है, सनतकार रहता है। एक बासलाहियत कारोबार रहता है, कायदाना सलाहियत उनके अंदर रहती है। मकासिद का हुसूल, यानी जो मकसद, जो एम उन्होंने फिक्स करे थे, उसके हासिल में, उसको उस तक पहुंचने के लिए हमेशा फ़आल रहते हैं, हमेशा कोशिश में रहते हैं, उसको वो हासिल करके रहते हैं कि इतना टारगेट हमारा है तो उसको हम जाकर
ریچ ہونا ہی ہے، اس کو جا کر ہم اچیو ہونا ہی ہے، وہاں تک جانا ہی ہے۔ نئے کی عادت ڈالنا، یہ بھی ایک خاصیت ہے، یعنی روز روز ترقی کرتے جانا اس کام میں، اس پروڈکٹ میں، اس صنعت میں، تو نئے چیزوں کی عادت ڈالنا۔ کیونکہ آج کی جنریشن کیا ہے، آج کا موبائل کل پسند نہیں آتا، آج کی چیزیں کل پسند نہیں آتی، ہر ایک چیز میں، صرف موبائل کی ہی ایک بات نہیں ہے، جسٹ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے کر کے اس لیے ایگزامپل دے رہی ہوں، یعنی ہر ایک چیز میں جو ہے وہ نئے کی عادت ڈالتے اور انصاف پسند، یعنی جسٹس ان کے پاس میں رہتا ہے، حوصلہ مند ہوتے ہیں، وہ ہمت سے کام کرتے ہیں۔ پہلے ایک جملہ بولی میں، کچھ نہ ہونے کی صورت میں بہت کچھ کر گزرتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک حوصلہ ہوتا ہے، خود اعتمادی ہوتی ہے، اور فیصلوں کو انجام دیتے ہیں کہ آپس میں وہ صلاح مشورہ کر کے ایک مصمم فیصلے پر آتے ہیں کہ نہیں اس طرح سے کریں گے تو یہ صنعت ہماری ترقی کرے گی، تو اس طرح سے جو ہے ان کے میں ایک فیصلوں کو انجام دینے کی خاصیت۔ اور نقصان کی بھرپائی، چلو کبھی اپنا وہ پروڈکٹ سیل نہیں ہو رہا ہے، اپنی وہ چیز فروخت نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو نقصان کی بھی بھرپائی کرتے، نہیں آج ہمارا نقصان ہو گیا، کمپنی فلاپ ہو گئی کر کے اس کمپنی کو بند کر کے وہ نہیں بیٹھتے، اس میں اور اس چیزوں میں اور ترقی لاتے، اور اس میں نیاپن لاتے، اور اس میں جدیدیت لاتے، اس کام کو اور ترقی دیتے ہوئے مارکیٹ فراہم کرتے، تو نقصان کی بھرپائی کرنے کی بھی صلاحیت جو ہے ایک صنعت کار میں پائی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ کیا تھے صنعت کاری کے یا ایک صنعت کار کے خصوصیات، یعنی ایک صنعت کار میں ایک باصلاحیت کاروبار میں کون کون سے خصوصیات ہوتے ہیں، یہ آپ کو 3 یا 4 مارکس میں بھی آنے والا سوال ہے کہ تخلیق کاری، فعال، خود اعتمادی، جماعت بندی، مسائل کا حل، قائدانہ صلاحیت، مقاصد کا حصول، نئے کی عادت ڈالنا، انصاف پسندی، حوصلہ مند ہونا، فیصلوں کو انجام دینا، اور نقصان کی بھرپائی، تو ایک صنعت کار کی خصوصیات ہے۔ ان خصوصیات کو اپنے اندر لے کے چلو، آپ کو بھی مستقبل میں ایک اہم صنعت کار بننا ہے، ملک کی معاشی ترقی کرنا ہے نا، تو یہ تمام خوبیاں ہر ایک انسان میں بھی رہنا ضروری ہے۔ ہم خود پہ اعتماد کریں گے کہ ہم جو ہے SSLC میں ٹاپ آف دا ٹاپ رینک پہ آئیں گے ہی آئیں گے۔ ایک حوصلہ اپنے پاس رکھو، جو بھی مسائل جو پڑھائی میں آ رہے ہیں اس کو حل کرتے جاؤ، اپنے اساتذہ سے سوال پوچھتے جاؤ، جب سوال کریں گے تو ہی جواب ملے گا نا، نہیں آتا بول کے ڈر کے ہمیں بیٹھنا نہیں ہے، سوالات پوچھنا ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اس کے حل تک پہنچنا ہے، تو تبھی جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے۔ تو اس لیے ان خاصیتوں کو جو دیکھ رہے ہیں خصوصیات کو ہم اپنے اندر بھی لانا، ہمیشہ فعال رہنا، ہمیشہ ایکٹیو رہنا، کوشش کرتے رہنا، کام کرنا، سستی اپنے اندر نہیں لانا، 4 5 گھنٹے جو ہے یہاں پہ موبائل میں ویسٹ کرے، دوسرے کاموں میں، یا نیند یہاں پہ 10 گھنٹے نیند کرے، ایسا نہیں ہے، 6 گھنٹے کی بھی نیند کافی ہے، 4 گھنٹے بھی سو کر کام کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں، تو ہمیشہ اپنی زندگی میں ہم ایکٹیو رہنا۔ تو پیارے بچوں، ان افعال کو، ان خصوصیات کو اپنے اندر لاؤ گے، اوکے ماشاءاللہ۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ تو صنعت کار کا عمل کیا ہے یا اس کے کام کیا ہے، کون کون سے کام، اتنی تمام خوبیوں کا مالک کون کون سے کام کو انجام دیتا ہے، یا صنعت کاری جو ہم کہتے ہیں کہ ایک تخلیقی عمل ہے، پہلے ہی بولے کہ صنعت کار کیا ہوتا ہے، تخلیق کار ہوتا ہے، یعنی نئی چیزوں کو تخلیق دیتا ہے، نئی چیزوں کو، پروڈکٹس کو بناتا ہے، تو صنعت کاری ایک تخلیقی عمل ہے۔ تو صنعت کار کے اہم کام کیا ہیں کر کے، کون کون سے کاموں کو انجام دیتا ہے، تو پیارے بچوں یہ بھی 3 سے 4 مارکس میں آنے والا سوال کا جواب ہے کہ صنعت کاری ایک تخلیقی عمل ہے، یا صنعت کار کے اہم کام کیا ہیں، یا صنعت کار کے اہم افعال کیا ہیں کر کے۔ تو چلیے غور سے سنیے۔ صنعت کار موقع کا جائزہ لیتے ہوئے، منصوبہ بنا کر، ذرائع اکٹھا کرتے ہوئے، نقصان کا اندازہ لگا کر، اس سے نفع اٹھاتے ہوئے سماجی ترقیاتی تبدیلیاں لانے کا اہم کام انجام دیتا ہے۔ صنعت کار موقع کا جائزہ اٹھاتا ہے، ایک منصوبہ بناتا ہے، تو اپنی صنعت کو قائم کرنے کے لیے ذرائعوں کو، وسائل کو، ریسورسز کو اکٹھا کرتا ہے، اور ایک اندازہ بھی لگاتا ہے کہ کتنا منافع ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، نقصان کی بھرپائی کے لیے بھی تیار رہتا ہے، نفع اٹھاتے ہوئے سماج کے ترقیاتی تبدیلیاں لانے کے لیے اہم کاموں کو انجام دینے والا صنعت کار رہتا ہے۔ تو صنعت کار تجارتی سرگرمیوں کے لیے کئی منصوبوں کے ذریعے کام کرتا ہے، تو تجارت کو کس طرح سے ترقی دینا، اس کے لیے کیا کرتا ہے، وہ بہت سے منصوبے بنا کر اپنی صنعت کو ترقی دیتا ہے۔
صنعت کار پیداواری شعبوں میں استحکام لاتا ہے، چاہے وہ ابتدائی حلقے کی ہو، ثانوی ہو، ثلاثی ہو، تو تمام شعبوں میں ایک استحکام لے کے آتا ہو۔ صنعت کار پیداواری اشیاء کے بارے میں، ٹیکنیکی طور و طریقوں کے بارے میں، مارکیٹ اور روزگار کے بارے میں فیصلے دیتا ہے کہ کون سے اشیاء یہاں پہ بنانا، کون سے نئے ٹیکنیک کا استعمال کرنا، کون سے طریقوں کا استعمال کرنا، کس طرح سے ان چیزوں کو مارکیٹ فراہم کرنا، اور اپنی صنعت کا آغاز کر کے بہت سے بے روزگاروں کو روزگاری کے موقع بھی دیتا ہے، معلومات بھی فراہم کرتا ہے کہ اس طرح سے کریں گے تو صنعت ترقی کرے گی، تو اپنی صنعت میں بہت سے بے روزگاروں کو باروزگار بھی بنا دیتا ہے۔ وہ صنعت کا تمام نکات کو مناسب طریقے سے نپٹاتا ہے، اس کو نفع کا بھی اندازہ ہوتا ہے، نقصان کا بھی اندازہ ہوتا ہے، کون سے مسائل آئیں گے اس کا بھی وہ بہت ہی دور اندیش ہوتا ہے، تو اس کا اندازہ لگا کر جو بھی نکات، جو بھی مسئلے آئیں گے اس سے نپٹنے کا حل بھی، ان مسائل کو حل کرنا بھی اس کے پاس میں وہ طریقہ موجود رہتا ہے۔ صنعت کار اپنی صنعت کے اقتصاد کے آمد خرچ کا بار بھی سنبھالتا ہے، جو بھی وہاں پہ سمجھو ترقی ہو گئی یا نفع ہو یا نقصان ہو، جو بھی خرچ ہو تو اس کو بھی سنبھالنے کے لیے وہ ریڈی، سب کام کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ فائدہ ہو رہا ہے، چلو فائدہ ہو رہا ہے، سبھی مل بانٹ کے کھائیں گے، ملک کو ترقی کرے، نقصان ہو رہا ہے، نقصان کی بھرپائی کے لیے بھی وہ تیار رہتا ہے۔ صنعت کار نفع و نقصان اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرتا ہے، جیسا بھی ہو آئی ایم ریڈی کہتا ہے اس نے، چلو اس کو کریں گے، کچھ نہیں ہے کچھ کر کے دکھائیں گے۔ صنعت کار تجارت کی راہیں معلوم کر کے صحیح طریقے سے رویہ عمل لانے کی رہنمائی بھی کرتا ہے کہ کس طرح سے اپنی تجارت کو ترقی دے، کس طرح سے پروڈکٹ کو اور اچھے بنائے، کیسا ان تمام پیداوار کو مارکیٹ فراہم کریں، صنعت میں کس طرح سے ترقی کرے، صنعت کو ترقی دینے کے لیے نئے طریقے کون سے ہیں، نئے ٹیکنیکس کون سے ہیں، تو یہ تمام معلومات رکھتے ہوئے لوگوں کو معلومات بھی فراہم کرتا ہے، روزگاری کے موقع فراہم کرتے ہوئے ایک اہم صنعت کو ملک کی ترقی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ تو یہ تمام کام کون انجام دیتا ہے؟ صنعت کار۔ یاد رہیں گے آپ کو؟ چلیے تو نیکسٹ آگے بڑھیں گے۔ صنعت کار کے کردار یا صنعت کار بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے کر کے بھی، صنعت کار کی اہمیت کیا ہے یہ دیکھیں گے بھی۔ صنعت کار کی معاشی ترقی میں صنعت کار کا کردار کیا ہے یا صنعت کار کی اہمیت کیا ہے، یعنی ملک کی معاشی ترقی میں صنعت کار کا کردار بیان کیجیے، اس طرح سے بھی سوال رہے گا، صنعت کار کی اہمیت بیان کرو، اس طرح سے بھی رہے گا۔ تو ملک کی معاشی ترقی میں صنعت کار بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کی خصوصیات، ان کے روبہ عمل، ان کی تخلیق کاری، ان کے کام کو دیکھ چکے ہیں۔ تو صنعت کار تجارت کے ماہر ہوتے ہیں، مختلف تاثرات کا خیال رکھتے ہوئے ان کو روبہ عمل لا کر معاشی ترقی کو فروغ دیتے ہیں۔ ہندوستان کی معاشی ترقی میں صنعت کار کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ تو صنعت کار مارکیٹ کی اقتصادی شعبے میں مرکزی مقام رکھتے ہیں۔ صنعت کار عوام کی غیر مفید بچتوں کو سرمایہ کے انداز میں قائم رکھتے ہیں، یعنی سمجھو ہمارے پاس میں پیسے بچ رہے ہیں تو اس پیسے کو کس طرح سے انویسٹ کرنا، کس طرح سے شیئر مارکیٹنگ میں لگانا، الگ الگ صنعتوں میں لگانا، کس طرح اس کا فائدہ حاصل کرنا، یہ بھی جو ہے صنعت کار ہمیں بتاتے ہیں۔ صنعت کار خودکار صنعت رکھنے والوں کو، ٹیکنیکی صلاحیت رکھنے والوں کو، پیشہ واروں کے لیے روزگار یا صنعت فراہم کرتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی صنعت کار ہے، صنعت رکھنے والے ہیں، یا کوئی ٹیکنیکی صلاحیت رکھنے والے ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں، یا کوئی پیشہ وار لوگ ہیں اس پیشے کو کرنے والے، یا کوئی جو بے روزگار ہے، تو ان تمام کو جو ہے وہ روزگار فراہم کرتے ہیں یا صنعت فراہم کرتے ہیں، یعنی ان کے گائیڈنس بھی کرتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا، کس طرح تمہارا بچا ہوا پیسہ کسی ایک چھوٹی موٹی صنعت میں لگاتے ہوئے اس کو کیسا ترقی کی راہ پہ لے کے جانا، یہ بھی ایک صنعت کار بتاتے ہیں۔ اس لیے ملک کی معاشی ترقی میں ان کا ایک اہم کردار ہے۔ صنعت کار ایک ملک کے لیے خالص پیداوار اور عوامی ترقی و فی کس آمدنی کو بھی بڑھاتے ہیں۔ تو ملک کی خالص پیداوار کو بھی بڑھاتے ہیں، عوام کو ترقی دے رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی ہمارے فی کس آمدنی بڑھے گی، فی کس آمدنی بڑھ رہی ہے تو ہمارے ملک کی قومی آمدنی بھی بڑھے گی، تو ہماری پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا، تو لوگوں کو روزگاری دے رہے ہیں جس کی وجہ سے فی کس آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ملک کی قومی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ملک کیا ہو رہا ہے ہمارا معاشی لحاظ سے
तरक्की की राह पे जा रहा है। किसकी वजह से? सनतकारों की वजह से, क्योंकि लोगों को रोजगारी के मौके फराहम कर रहे हैं, सनत फराहम कर रहे हैं। यहाँ पे नए नए टेक्निक से लोगों को आगाह करते हुए मुल्क को तरक्की की राह पे ला जाए। नई अशिया और खिदमात की आदत डालते हैं, नई नई चीजें मार्केट में लाते हैं। तो आज की चीज हमें कल नहीं यूज करते, उसको चला और नयापन लाते हैं। जिस तरह से इब्तिदा में मैं मोबाइल की मिसाल दी वहाँ पे, तो आज एक मोबाइल लॉन्च होता है, उसको खरीदते हैं, फिर 1-2 महीने के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद दूसरा मोबाइल लॉन्च हो तो हमें वो खरीदने की चाहत होती है। तो नई अशिया की भी वो आदत डालने वाले कौन है? सनतकार हैं। और खिदमात की भी आदत डालते हैं। लोगों की खिदमत किस तरह करना, कैसा लोगों को रोजगारी के मौके देना, कैसी नई सनतों का आगाज करना, रोजगार कैसे देना, मुल्क की तरक्की में किस तरह से कोशा रहना। और सनतकार कम कीमत पर बेहतरीन अशिया अवाम को पहुंचाते हैं, क्योंकि इनमें भी मुकाबला रहता है कि मेरी कंपनी आगे जाए, मेरी सनत आगे जाए। तो यहाँ पर फायदा किसका हो रहा है? हम सारिफीन का हो रहा है, अवाम का हो रहा है। तो सनतकार कम कीमत पर बेहतरीन से बेहतरीन अशिया को अवाम तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से अवाम की मियारे ज़िंदगी भी क्या होती है? बुलंद होती है, आमदनी भी आ रही है, कम कीमतों में अशिया भी हमें मिल रहे हैं, तो हमारी मियारे ज़िंदगी क्या होती है? बढ़ती है। तो सनतकार अवाम की, मुल्क के शहरियों की मियारे ज़िंदगी को बढ़ाते हैं। सनतकार कारखानों को तरक्की फराहम करते हैं, नयापन उसमें लाते हैं, नए नए अशिया लाते हैं, नए नए टेक्निक्स का, हुनर का वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो वो सनतकार उस सनत को ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं? तरक्की देते हैं। सनतें तरक्की हो गई, लोगों को रोजगारी मिल गया, तो मुल्क की मौशी हालत में क्या हो जाएगी? खुद ब खुद तरक्की आ जाएगी। और इसके साथ साथ इलाकाई तफरुक को देही इलाकों में सनतों का क़याम करते हुए दूर करते। अब एक शहरी इलाका, एक देही इलाका है, दोनों की मौशी हालत में फ़र्क पाई जाती है। देहात में उतने जो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होते जितने कि शहरों में होते हैं। तो उस वक्त वहाँ पे उस देही इलाकों में पाए जाने वाले वसाइल का ही इस्तेमाल करते हुए सनतकार वहाँ पे एक सनत का क़याम करता है। समझो कोई एक इलाका है, तो अचानक से वहाँ पे क्या है? यूरेनियम दरियाफ्त हो गया। तो सनतकार को मालूम पड़ जाता है, चलो वहाँ पर उसका एक कारखाना सेटल करता है, फिर उस कारखाने में बहुत से मजदूरों को काम मिल जाती है, तो वो एक इंडस्ट्रियल एरिया बन जाता है। तो यहाँ पे शहर में और देहात में जो फ़र्क था वो क्या होता है? मिट जाता है। तो देही इलाकों में सनतों का क़याम करते हुए इलाकाई तफरुक को क्या करते हैं? वो दूर करते हैं। इलाकों में जो फ़र्क पाया जा रहा था उसको वो दूर करते हैं। मुकाम में जो वसाइल पाए जाते हैं, तो मुकामी वसाइल को लेकर मुकामी लोगों की तरक्की करते हैं, उस मुकाम में सनत की आगाज़ या इब्तिदा करते हुए मुकामी वसाइल के ज़रिए से उस मुकाम में ही सनत को कायम करते हुए वहाँ के मुकामी लोगों की तरक्की करते हैं, रोज़गार मुहैया करते हैं, नए नए टेक्निक, हुनर से उन्हें आगाह करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे शहरों में और देहातों में जो फ़र्क था वो क्या होता? मिट जाता। अब वो देही इलाका उस सनतकार की वजह से क्या बन गया? सनती तरक्की याफ्ता शहर बन गया। तो देही इलाकों में सनतों का क़याम करके देही इलाकाई फ़र्क को मिटाते हैं। सनतकार मुल्क की बरामदी कारोबार को भी बढ़ाते हैं। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी क्या करते हो? बरामद करना, नहीं दूसरे ममालिक को चीज़ों को फ़रोख्त करना, दरामद करना, मंगवा लेना। तो हमारी बरामदी कारोबार को भी बढ़ाते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई चीज़ें हमारे मुल्क में तैयार होने लगते, फिर हम वो दूसरे ममालिक को फ़रोख्त करते, तो हमारा बरामदी कारोबार भी बढ़ जाता है। सनत का जदीद तब्दीलियों की आदत डालते हुए टेक्निकी महारतों को तब्दील करते हुए ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार अपनाते हैं। तो इस तरह से इन तमाम कामों को अंजाम देते हुए सनतकार मुल्क की मौशी तरक्की करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मुल्क की मौशी तरक्की में सनतकारों का किरदार बहुत ही अहम है। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया अब तक क्या क्या पढ़े हम? सनतकार किसको कहते हैं, सनतकार किस तरह से फ्रांसीसी ज़ुबान से रेंट रेफरेंस से लिया गया है, फिर सनतकार की खुसूसियात पढ़े, सनतकार का अमल है ना, कौन कौन से काम वो अंजाम देता है। अब सनतकार मुल्क की माशी तरक्की में किस तरह से अहम किरदार अदा करते हैं या सनतकार की अहमियत क्या है, उसके लिए भी हम यही जवाब लिखें। तो इतने नुकात आपको याद हो गए? यस, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सनतकार की अहमियत को जानते हुए अब आगे, अब हुकूमत की जानिब से खुद रोजगार मंसूबों को अमल में लाने वाले
इदारे कौन कौन से। अब एक कोई शख्स यहाँ पे खुद की सनत को जारी करना चाह रहा है, यानी वो सनतकार बनना चाह रहा है, या आप इमेजिन कीजिए कि आप ही एक सनतकार बनना चाह रहे हैं। आपने अपने अंदर की तख्लीक को एक कारोबार या एक सनत का दर्जा देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हुकूमत जो है खुद रोजगार के मंसूबों को अमल में लाने के लिए कौन कौन से इदारे कायम किए, यानी कहाँ कहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है कि उस हमारी सनत को कायम करने के लिए। ये भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे के आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो बनने वाले हैं, सनतकार बनने वाले हैं, है ना, बाहौसला कारोबार बनने वाले हैं आप। तो कौन कौन से इदारे हैं जो हुकूमत की जानिब से हमें मदद फराहम करते हैं? तो हिंदुस्तानी सनती तरक्याती कौमी बैंक, ये हमें माली मदद फराहम करते हैं, तरबियती मदद भी फराहम करते हैं। उसी तरह से ज़रई और देही तरक्याती कौमी बैंक, दरआमद बरामद बैंक या एक्सिम बैंक जिसको कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, दरामद बरामद बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जिसको एक्सिम बैंक भी कहते हैं शॉर्ट में। उसी तरह से हिंदुस्तानी छोटे पैमाने की तरक्याती कौमी बैंक, यानी जो घरेलू सनतों को तरक्की देने के लिए बैंक रहती है, जहाँ से हम लोन ले सकते हैं, माली मदद ले सकते हैं। उसी तरह से भारतीय सनती मालियाती इदारा, भारतीय सनती मालियाती इन्वेस्टमेंट और कर्ज का इदारा। उसी तरह से जो है यहाँ पे हिंदुस्तानी तिजारती और दीगर बैंक, रियासती मालियाती इदारा यानी स्टेट फाइनेंशियल एसोसिएशन, और उसी तरह से जो है हिंदुस्तानी बीमा इदारा या रियासती मालियाती इदारा या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं। तो ये तमाम जो है खुद रोजगारी को जारी करने के लिए, यानी हमें कौन सी भी एक मार्केट यहाँ पे तैयार, यानी कोई एक कारखाना या कोई सनत, हम जिस तरह से समझो अभी इंटरनेट या मवासलात की दुकान आप जारी करना चाह रहे हैं, या अशिया को किराए पर देने का, जिस तरह से हम जो शादी ब्याह के मौके पर जो है जो भी वहाँ चीज़ें लगते हैं, पेन डॉल रहता है या चेयर्स रहते हैं, तो उस तरह का एक बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं, या एक ब्यूटी पार्लर का आगाज़ करना चाह रहे हैं, या कोई एक सनत का यहाँ पे, तो उसके लिए मदद देने के लिए, यानी खुद की हम रोज़गार जो शुरू करना चाह रहे हैं, तो खुद रोज़गार मंसूबों को अमल में लाने के लिए, हमारी सनतों को कायम करने के लिए मदद देने वाले हुकूमत की जानिब से ये तमाम इदारे हैं। तो ये इदारे क्या करते हैं, हमें माली मदद को फराहम करते हैं, यानी रकम जो है कर्ज के तौर पर देकर माली मदद फराहम करने वाले ये इदारे हैं। याद रहेंगे, हिंदुस्तानी सनती तरक्याती कौमी बैंक, ज़रई और देही तरक्याती बैंक, दरामद बरामद बैंक, हिंदुस्तानी बीमा इदारा यानी लाइफ इंश्योरेंस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या जिसको हम UTI भी कहते हैं। उसी तरह से ICGCI यानी भारतीय हिंदुस्तान सनती मालियाती इन्वेस्टमेंट और कर्ज का इदारा है, या IFCI यानी भारतीय सनती मालियाती इदारा। तो ये तमाम इदारे क्या करते हैं, हमें माली मदद फराहम करते हैं ताकि हमारे जो रोज़गार के मंसूबे हैं उसको हम जारी कर सकें। अब हिंदुस्तान में सनतकारों के तरक्याती इदारे कौन कौन से हैं? हमारी सनत को तरक्की देने के लिए और भी बहुत से इदारे हमें कौन कौन से यहाँ पे मदद फराहम करते हैं। तो सनतों को कायम करने के लिए रुपया, तरबियत और मार्केट फराहम करने के लिए ये इदारे मदद करते हैं। कौन कौन से हैं वो यहाँ पे है, देखो, छोटी सनत के खिदमात का इदारा, ज़िलई तरबियती मराकिज़, ज़िलई तरबियती मराकिज़ या जिसको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स जिसको कहते हैं। छोटे पैमाने की सनतों की तरक्की के इदारे, छोटे पैमाने की सनतों की तरक्की के इदारे, छोटे पैमाने के कारखानों का बोर्ड, सनती इलाके, टेक्निकी सलाही तंजीमें। तो ये तमाम जो है एक सनतकारों को तरक्की देने के लिए, यानी उसको रुपया भी देते हैं, तरबियत भी देते हैं और मार्केट भी फराहम करते हैं। किसी सनत को कायम करने के लिए, सनतों को कायम करने के लिए रुपया, तरबियत और उसे मार्केट किस तरह से फराहम करना करके ये तमाम इदारे भी जो है हमें मदद फराहम करते हैं। यानी ज़िले तरबियती मराकिज़ है या छोटी सनतें, छोटे पैमाने की जो सनतें रहते हैं उन सनतों का खिदमती इदारा है, या कौमी छोटे पैमाने की सनतों का इदारा भी है और छोटे पैमाने की सनतों की तरक्की के इदारे भी हैं। सनती इलाके हैं यानी इंडस्ट्रियल स्टेट जिसको कहते हैं। उसी तरह से टेक्निकी सलाही तंजीमें यानी टेक्निकल
कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, TCO जिसको कहते हैं। तो ये तमाम क्या करते हैं, हमें मदद फराहम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया अभी तक का? ओके, चलिए इस पे चंद एक सवालात पूछूं क्या? चलो एक दो चार सवालात पूछती हूँ मुख्तसर से, फिर जो है हमारे हिंदुस्तान के अजीम सनतकार कौन कौन हैं इनके बारे में देखेंगे। तो उससे पहले जो है चंद एक सवालात पूछती हूँ। आप लोग तैयार हैं? माशाल्लाह। चलिए, तो सबसे पहला सवाल है आपके लिए, सनतकार नामी लफ्ज फ्रांसीसी जबान के कौन से लफ्ज से लिया गया है? सनतकार नामी लफ्ज फ्रांसीसी जबान के कौन से लफ्ज से लिया गया है? यस, सनतकार जो ये लफ्ज है तो ये फ्रांसीसी जबान के कौन से लफ्ज से लिया गया है? यस डियर स्टूडेंट्स, चलिए कमेंट में अपना आंसर लिखते चले जाइए। सनतकार नामी लफ्ज फ्रांसीसी जबान के कौन से लफ्ज से लिया गया है? माशाल्लाह, सही जवाब रेंट रेफरेंट। कौन से लफ्ज से लिया गया? रेंट रेफरेंट, यानी जिसके मानी क्या है, एक सरगर्मी को अपने हाथ में लेकर अंजाम देने वाला जो रहता। माशाल्लाह। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, सनतकार का कोई एक काम बताइए। बहुत से काम बताइए, मैं अब सिर्फ एक काम कौन सा भी लिखते चले जाइए। बहुत से काम सनतकार अंजाम देता है ना, तो कोई एक काम बताइए। कौन कौन से काम सनतकार अंजाम देता है, यानी सनतकार के अमल या सनतकार का किरदार या सनतकार के काम करके मैंने बताई ना, उसमें से कोई एक काम बोलिए। चलिए जल्दी जल्दी अपने आंसर लिखते चले जाइए। या सनतकार तिजारती सरगर्मियों के लिए कई मंसूबे बनाता है। माशाल्लाह। और सनतकार नुकसान का सामना करने के लिए तैयार रहता है। सही जवाब। और सनतकार नफा और नुकसान का जायजा लेता है, ये भी सही है। यस, चलिए इस तरह से बहुत से काम अंजाम देता है ना, कोई भी एक काम आपको बताना था यहाँ पे। माशाल्लाह, जो बताए हैं ना, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा सवाल, सनतकार किस तरह इलाकाई फर्क को दूर करता है? आपको बताई थी ना, एग्जाम्पल दे के भी बताई थी मैं यहाँ पर। चलिए बोलिए, सनतकार किस तरह से इलाकाई फर्क को दूर करता है? इलाकों के दरमियान में जो फर्क पाया ना, रूरल, अर्बन, देही या शहरी लेके एग्जाम्पल बताई थी मैंने। या सनतकार किस तरह से इलाकाई तफर्रुक को या इलाकाई फर्क को दूर करता है? माशाल्लाह, सही जवाब। सनतकार कारखानों को तरक्की देते हुए या वहां पे सनतों का क़याम करते। माशाल्लाह, सही जवाब। सनतों का क़याम करते हुए, सही जवाब है। सनतकार देही इलाकों में सनतों का क़याम करते हुए इलाकाई तफर्रुक को दूर करते हैं। वेरी गुड। यानी सनतकार देही इलाकों में सनतों का क़याम करते हैं, यानी वहाँ पे पाए जाने वाले वसाइल को ही लेकर वहाँ पे सनत को कायम करके वही मुकामी लोगों को क्या करते हैं, वो तरक्की देते हैं, रोजगारी के मौके देते हैं। तो इस तरह से देहाती इलाकों में सनतों को कायम करके सनतकार इलाकाई तफर्रुक को दूर करते हैं। माशाल्लाह। चलिए अगले सवाल की तरफ। हुकूमत की जानिब से खुद रोजगार मंसूबों को अमल में लाने वाले कोई एक इदारे का नाम बताइए। चलिए तलबा जल्दी जल्दी लिखिए प्यारे बच्चों। हुकूमत की जानिब से खुद रोजगार मंसूबों को अमल में लाने वाले कोई एक इदारे, बहुत से इदारों के नाम बताइए ना, तो कोई एक इदारे का नाम। यस, सही है, LIC। हाँ, हिंदुस्तानी बीमा इदारा, LIC, ये जवाब भी सही है। और कोई? हिंदुस्तानी सनती बैंक। माशाल्लाह, ये जवाब भी सही है। और यस, कमेंट में लिखते चले जाइए अपने जवाबात। हुकूमत की जानिब से खुद रोजगार मंसूबों को अमल में लाने वाले कोई एक इदारे का नाम। यस, दरामदी बरामदी बैंक, ये भी सही है। भारतीय बैंक, रिजर्व बैंक, अच्छा ये भी सही है। भारतीय सनती मालियाती बैंक। हाँ, माशाल्लाह। चलिए और एक सवाल। हिंदुस्तान के
कोई एक सनतकारों को, हिंदुस्तान के कोई एक सनतकारों के तरक्याती इदारे का नाम बताए। इन्हें सनतकारों को तरक्की देने के लिए बहुत से इदारे कायम किए गए हैं। इन्हीं सनतकारों के तरक्याती इदारे यानी प्रमोशनल एसोसिएशन जिसको कहते हैं, इदारे जो कहते हैं, बहुत से बताए, उसमें से कोई एक जो आपको याद है। यस, हिंदुस्तान के कोई एक सनतकारों के तरक्याती इदारे का नाम बताइए जहाँ पे तरबियत, पैसा, मार्केट सब फराहम होता है ना, वैसे एक इदारे का। जिले तरबियती मराकज़, सही है माशाल्लाह, सही जवाब। और सनती इलाके, ये भी सही है। और छोटे पैमाने की सनती तरक्याती बोर्ड, ये भी सही है माशाल्लाह। तो इतने नुकात आपको समझ में आए हैं। चलिए, तो हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत से कामयाब तरीन सनतकार हैं, बासलाहियत कारोबार हैं, बहुत से हैं। आप लोग टाटा, बिरला, अंबानी ग्रुप्स, इन तमाम का नाम सुने होंगे ना। ये हमारे हिंदुस्तान के कामयाब सनतकार हैं। चलिए, उनमें से थोड़ों का अब हम मुतालिया करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे, पहचानते हैं ये कौन है जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे सदर से अवार्ड ले रहे हैं। यस चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, कौन है ये हैं डॉक्टर प्रताप रेड्डी। कौन है ये? डॉक्टर प्रताप रेड्डी हैं, जिन्होंने अपोलो मेडिकल ग्रुप कॉलेज की इब्तिदा की थी। तो डॉक्टर प्रताप रेड्डी 1933 में चित्तौड़ जिला आंध्र प्रदेश के पद्म में पैदा हुए। तो 2010 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। उसी तरह से 1991 में भी इनको अवार्ड से नवाजा गया। तो इनका अहम कारनामा क्या है करके, तो डॉक्टर प्रताप रेड्डी सेहत के शोबे में तबई कॉलेजेस की बुनियाद डालने वाले पहले शख्स हैं। तो अपोलो मेडिकल कॉलेजेस आप नाम सुनेंगे, अपोलो हॉस्पिटल्स रहते हैं या मेडिकल शॉप रहते हैं। तो अपोलो मेडिकल कॉलेजेस, इनकी बुनियाद डालने वाले कौन है? डॉक्टर प्रताप रेड्डी। आज इनकी इन हॉस्पिटल्स की तादाद कितनी है? 750 जदीद हॉस्पिटल्स मौजूद हैं यहाँ पे। तो अपोलो मेडिकल कॉलेज की बुनियाद डालने वाले यानी सेहत के शोबे में तरक्की लाने वाले सनतकार कौन है यहाँ पे? डॉक्टर प्रताप रेड्डी। यानी मेडिकल शोबे में इनकलाब लाने वाले शख्स को यह जो है हॉस्पिटल शुरू करने की तहरीक देने वाले एक मरीज यानी जो ओपन हार्ट सर्जरी का इलाज करने के लिए जिसको क्या था, अमेरिका जाना था, अमेरिका के टेक्सटाइल जाना था, बट उसको नामुमकिन हो सका। तो उसकी हालत देखते हुए उन्होंने खुद यानी एक मरीज को जो है अपना ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए, दिल का ऑपरेशन कराने के लिए उसको अमेरिका के टेक्सास जाना था, बट वो जा नहीं सका, तो उसकी मौत हो गई। इस हालत से इन पर ऐसा असर हो गया इस हादसे से कि उन्होंने खुद यहाँ पर जो क्या किए हैं, अपोलो ग्रुप ऑफ मेडिकल कॉलेजेस करके इसकी इब्तिदा की है। तो ये अपोलो मेडिकल कॉलेज, ये हॉस्पिटल्स, ये मेडिकल शॉप्स, इसकी इब्तिदा करने वाले पहले शख्स कौन थे यहाँ पे? डॉक्टर प्रताप रेड्डी। समझ में? तो आगे और एक है यहाँ पे, इनको आप जानते हैं, ये कौन है? दिखाई दे रहा है, ये है नरेश गोयल। कौन है ये? नरेश गोयल है, यानी जेट तैयारे जिसको हम कहते हैं। नरेश गोयल जेट तैयारे की, जेट हवाई जहाज है ना, एक जो कंपनी है, तो इसकी राहें हमवार करने वाले और इस इदारे के सदर कौन है? नरेश गोयल हैं। यानी फिजाई राहें, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो फिजाई राहों का इदारा है जेट एयरवेज, तो इसको कायम करने वाले कौन है यहाँ पे? नरेश गोयल हैं ये। तो उसके वो सदर हैं उन्होंने जेट एयरवेज। यानी सबसे पहले इसका थोड़ा सा मुख्तसर सा बताती हूँ। तो 1993 में गोयल ने कांग्रेस हुकूमत के जरिए से हिंदुस्तानी मईशत के आगाज और हिंदुस्तान में घरेलू शोबों पर तयशुदा हवाई खिदमात के काम के लिए जेट एयरवेज के कयाम के लिए ओपन स्काई पॉलिसी के खात्मे का फ़ायदा उठाया। जेट एयरवेज ने मई 5, 1993 को तिजारती कार्रवाइयों का आगाज़ किया। नरेश गोयल ने हिंदुस्तान में गैर मुल्की एयरवेज को फ़रोख्त और मार्केटिंग की नुमाइंदगी फराहम करने के मकसद से जेट एयरवेज करके अपनी निजी कंपनी की बुनियाद रखी। तो नरेश गोयल ने 2004 और 6 तक जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA जिसको कहते हैं, उसके बोर्ड में भी उन्होंने खिदमत अंजाम दे हैं।
तो नरेश गोयल ने अपनी अहलिया के साथ 25 मार्च 2019 को जेट एयरवेज के जो बोर्ड से वहाँ से रिटायर्ड या सबकदोज हो गए। तो लेकिन फिर भी कहा जा रहा है चंद एक मीडिया के जरिए से कि गोयल फिर एक बार जो है एयरलाइन की नई कंपनी के साथ हवाबाजी के शोबे में उतरने का एक मंसूबा बना रहे हैं करके। तो ये जेट एयरवेज की जो ये फिजाई राहों का जो इदारा है, इसके सदर नशीन, इसके निजी कंपनी के आगाज करने वाले कौन है यहाँ पे? नरेश गोयल। समझ में आया? तो एक अहम कामयाब क्या है, ये सनतकार हैं जिन्होंने जेट एयरवेज की जो है हिंदुस्तान में आगाज की है। तो नेक्स्ट आगे और एक सनतकार के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नारायण मूर्ति। नाम सुने होंगे ना, नारायण मूर्ति या सुधा मूर्ति नाम सुने रहेंगे, आजकल न्यूज़ में सुनते रहते हैं ना। यस, ये नारायण मूर्ति की अहलिया है। नारायण मूर्ति की पैदाइश और परवरिश कर्नाटक के सडलगट्टा में हुई। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से मास्टर डिग्री हासिल की थी। नारायण मूर्ति 1999 ईस्वी में हिंदुस्तान में इन्फोसिस टेक्निक को शुरू करने वालों में से एक है और ये इन्फोसिस जो है नैस्डैक में रजिस्टर शुदा पहला जो है टेक्निकी इदारा कौन सा? इन्फोसिस पहला टेक्निकी इदारा कौन सा जो था, इसका आगाज करने वाले कौन है? नारायण मूर्ति। और नैस्डैक यानी इसका एब्रिविएशन क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस करके। तो इसमें जो यानी जो क्या बोलते हैं शेयर मार्केटिंग रहते हैं, तो उस तरह से जो एक इदारा है ये, तो इस इदारे में सबसे पहले जो इसमें यहाँ पे जो टेक्निकी इदारा जिसकी रजिस्टर्ड हुई है वो कौन सा है? नारायण मूर्ति का इदारा इन्फोसिस। तो इन्फोसिस टेक्निक के आगाज करने वाले, इस एसोसिएशन को यहाँ पे शुरू करने वाले कौन थे? नारायण मूर्ति थे। तो ये पहला नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन एक्सचेंज में सबसे पहले जो है इन्फोसिस को दर्ज किया गया है। यानी नस्डैक में रजिस्टर शुदा हिंदुस्तान का सबसे पहला टेक्निकी इदारा कौन सा है? इन्फोसिस है। नारायण मूर्ति और उनकी अहलिया कौन है? सुधा मूर्ति। दोनों क्या है? बहुत ही निहायत ही ईमानदार और हार्ड वर्कर हैं, सच्चाई के तरफदार, खुले कारोबार और अखलाकी तौर पर मुनफरद शख्सियत के हामिल दोनों भी हैं। कौन? नारायण मूर्ति और उनकी अहलिया, उनकी वाइफ, उनकी बीवी सुधा मूर्ति। तो इनका अहम कारनामा जो है इन्फोसिस इदारे का क़याम है। इन्फोसिस टेक्निकी इदारे का क़याम कौन है? ये नारायण मूर्ति। चलिए और एक यहाँ पे सनतकार के बारे में देखेंगे। ये देख रहे हैं, ये कौन है? ये सुधा मूर्ति। नारायण मूर्ति की वाइफ कौन है? इनकी अहलिया ये सुधा मूर्ति है। थोड़ा और इनके बारे में अगर चाहिए तो यहाँ पे और मैं लिखी हूँ, आप बाद में इसको पढ़ लीजिए क्योंकि क्लास का वक्त हो जाएगा, फिर ईशा की नमाज का भी वक्त होता है। यहाँ पे लिखी हूँ, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अब ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं, एक कौन है? ये वर्गीस कोरिन। एक कौन है? ये वर्गीस कोरिन, जिन्हें सफ़ेद इनकलाब के बावादम के नाम से जाना जाता है। वर्गीस कोरिन ये मशहूर और मारूफ सनतकार हैं, सफ़ेद इनकलाब के बावादम कहलाते हैं। यानी जो आप अमूल दूध या दूध की बनी हुई अशिया के बारे में देखे रहेंगे, अमूल दूध का नाम सुने हैं ना, तो अमूल दूध और दूध की बनी हुई बहुत सी चीज़ें, चीज़ वगैरह या अमूल बटर ला के खाते हैं, अमूल घी ला के खाते हैं। तो ये दूध, अमूल दूध और दूध की बनी हुई अशिया की तैयारी, तो इसको, इस सनत को फ़रोग देने वाले कौन है? वर्गीस कोरिन है। तो रियासत गुजरात के मवेशी पालन को छोटे पैमाने से शुरू करते हुए हिंदुस्तान के सबसे बड़े मवेशी पालन की सनत में तब्दील करने वाले कौन थे? वर्गीस कोरिन। तो रियासत गुजरात में एक छोटी सी सनत शुरू किए थे, चंद मवेशियों को लेकर जो है वहाँ पर दूध की डेयरी फार्मिंग बनाए थे, जैसा छोटे छोटे रहते ना अभी उस तरह से। तो आज जो है ये इंडिया में नंबर 1 है। कौन सा? अमूल दूध। तो इसके बावादम कौन है? सफ़ेद इनकलाब के बावादम। हम सफ़ेद इनकलाब यानी जो दूध की पैदावार में जो तरक्की है उसको हम क्या कहते हैं? सफ़ेद इनकलाब। जिस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन, सब्ज इनकलाब पढ़ते हैं हम लोग ज़राअत में तरक्की के लिए, है ना। तो उसी तरह से दूध की पैदावार में जो तरक्की है या दूध से बने हुए अशिया की, तो उसको हम क्या कहते हैं? सफ़ेद इनकलाब या वाइट रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं।
तो उसके बाबा आदम कौन है यहाँ पे? वर्गीस कुरियन, जिनकी पैदाइश 26 नवंबर 1921 में हुई थी। ये सफ़ेद इनकलाब के बाबा आदम के नाम से जाने जाते हैं। तो एक समाजी कारोबार थे, एक सनतकार थे, जिन्होंने डेयरी फार्मिंग का हिंदुस्तान में इसकी जो है इब्तिदा किया और बहुत से लोगों को यहाँ पे रोजगारी के मौके दे। जहाँ पे उन्होंने उनकी सनत, जो मवेशी पालन की सनत थी, वो तरक्की करते गई। बहुत से लोग जो बेरोजगार थे वहाँ पर आकर काम करने लगे। तो उन्होंने हिंदुस्तान को जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध तैयार करने वाला एक मुल्क बनाया। तो हर शख्स के लिए दस्तयाब दूध को दुगना करे और 30 सालों में दूध की पैदावार में 4 गुना भी उन्होंने इजाफा किया है। तो एक डेयरी मालिक की हैसियत से उन्होंने दूध और दूध की मसनूआत की मार्केटिंग, उसकी ख़रीदारी, प्रोसेसिंग, ये तमाम काम को अंजाम देते हुए अमूल दूध ये जो कंपनी का आगाज़ करने वाले, सनत को आगाज़ करने वाले कौन थे यहाँ पे? वर्गीस कुरियन। तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? हम सफ़ेद इनकलाब के बाबा आदम कहते हैं। तो अब आगे ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कौन है? ये ये है धीरू भाई अंबानी, यानी धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिनको हम कहते हैं। तो इनका अहम ग्रुप क्या है? कौन सा है? पहले हम इनको रिलायंस के नाम से जानते थे ना, फिर जियो आ गया। ये सभी जो है ये इन्हीं के बेटे जो है ना, उनके कारनामे हैं। तो धीरू भाई अंबानी हिंदुस्तान की कॉन्फ्रेंस इदारे का आगाज़ किया। उसी तरह रिलायंस ग्रुप, जिसका आगाज़ धीरू भाई अंबानी ने किया, हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा निजी शोबे का इदारा है ये। तो धीरू भाई अंबानी के वालिद जो है एक स्कूल के टीचर थे। तो अपनी मैट्रिकुलेशन इम्तिहान के बाद अपनी उम्र के 16वें साल ही में वो अफ्रीका के रेडन शहर गए। तो वहाँ पर देखो वो एक पेट्रोल बैंक में एक मुलाजिम थे। फिर उसी तरह वहाँ पे रहकर तरक्की करते हुए एक तेल की कंपनी में वो क्लर्क बन जाते हैं। फिर 1958 में हिंदुस्तान को सिर्फ 50,000 रुपये लेकर लौटे और अपने कपड़ों की सनत का आगाज़ किया। तो आज जो है इनके जो बेटे हैं, कौन कौन? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, नाम सुने रहेंगे ना। हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट में या सनतकारों में ये शुमार होते हैं। तो इनके अंदर जो तख्लीक थी, देखो तख्लीक, सिर्फ एक क्या थे? सिर्फ एक पेट्रोल बैंक में काम करने वाले मुलाजिम थे। आज इनका शुमार हिंदुस्तान के अहम तरीन सनतकारों में होता है। क्यों? इनके अंदर पाई जाने वाली सलाहियत, इनके अंदर पाई जाने वाली जो तख्लीक कारी थी, तो उन्होंने एक सनत का आगाज़ किया। बहुत से बेरोज़गारों को बारोज़गार बना। हिंदुस्तान की मुआशी तरक्की में भी उन्होंने अहम काम अंजाम दिए, जो आपको भी मुस्तकबिल में करना है। उसकी तैयारी भी अभी से आपको करना है। इन तमाम सलाहियतों को अभी से अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। यस प्यारे बच्चों, ये कौन है? आप जानते हैं इनको? ये है अजीम प्रेम जी। अजीम हाशिम प्रेम जी कहते हैं इनको। तो अजीम हाशिम प्रेम जी, इनकी पैदाइश 24 जुलाई 1945 में हुई है। एक हिंदुस्तानी बिजनेस टाइकून है, सरमायाकार हैं, इंजीनियर और एक बहुत ही मखबीर हैं। ये विप्रो लिमिटेड के ये चेयरमैन है। विप्रो नाम सुने रहेंगे ना। तो अजीम प्रेम जी विप्रो टेक्निकी इदारे के सदर हैं। ये इदारा सॉफ्टवेयर का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। कौन सा? विप्रो। इनके वालिद का इंतकाल इनकी तालिब इल्मी के ज़माने में ही हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद की सलाहियत से, खुद के कॉन्फिडेंस से, अपने मुसम्मम इरादे के साथ में जो है इस सॉफ्टवेयर कंपनी का उन्होंने आगाज़ किया और आज तालीम के मैदान में बेशुमार खिदमातें अंजाम दे रहे हैं। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के ज़रिए से तालीम को फ़िलहाल में जो हमारे क्रैश कोर्स हुए, तो उसके लिए भी उन्होंने अपनी बहुत सी मदद फराहम की है। तो विप्रो टेक्निकी इदारे के सदर कौन है? अजीम प्रेम जी, अजीम हाशिम प्रेम जी इनका पूरा नाम है। चले और एक सनतकार, इनसे तो आप बहुत ही फेमिलियर है ना। कौन है ये? यस, आपके जो सीरियल्स बनते हैं ना, उसकी मलिका, दूरदर्शन की मलिका कौन? एकता कपूर। जी हाँ, कौन है ये? एकता कपूर। हिंदुस्तान के दूरदर्शन जो महकमा है, यानी बालाजी टेलीफिल्म, जहाँ से आपके तमाम सीरियल बनते हैं ना, तो उसकी मलिका के नाम से ये मशहूर हैं। कौन? एकता कपूर। एकता कपूर हिंदुस्तान के दूरदर्शन महकमे की इनफरादियत हासिल करने वाली मलिका, यानी बालाजी टेलीफिल्म की मलिका के नाम से ये मशहूर हैं। तो एकता कपूर, जिनकी पैदाइश 7 जून 1975 में हुई, एक हिंदुस्तानी टेलीविज़न प्रोड्यूसर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं,
हिदायतकार हैं और बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और दूसरे बहुत से कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, जिसकी इब्तिदा उन्होंने 1994 में की थी। ये जितेंद्र की बेटी है ना, जानते हैं आप? हाँ, ये सभी पता रहता है आपको। तो एकता कपूर ने 15 साल की उम्र में अपने करियर का आगाज़ किया। इश्तिहारात, फिर फीचर फिल्म साजी और उसके साथ साथ बहुत से फिल्मों में अपने वालिद के साथ भी जो है उन्होंने काम करते हुए आज जो है बालाजी टेलीफिल्म के ज़रिए से बहुत से सीरियल्स उनके जारी हैं। तो ये भी क्या है, ये भी जो है फिल्म इंडस्ट्री, ये भी एक सनत ही है ना। वहाँ पर भी जो है अपने अपने नए नए ख्यालात के ज़रिए से हर फिल्म में जो है एक सबक रहता है, उसको हम पॉजिटिव वे में देखते गए तो इस समाज में जो चलता रहता है वही दिखाते रहते हैं। जो समाज में पेश आने वाले हालात हैं ना वही दिखाते हैं, एक अपनी नई तख्लीक के साथ दिखाते हैं, एक नए ख्याल के साथ दिखाते हैं, जिसको हम पॉजिटिव में लेकर सोचेंगे तो हर एक के पीछे ज़िंदगी का कोई ना कोई सबक रहता है। तो ये भी क्या है, ये सनदकार है। और एक आखिरी अब पढ़ेंगे, ये हैं किरण मजुमदार शाह, जो कि बाइकॉन इदारे की सदर और इंतज़ामी डायरेक्टर भी हैं। यह इदारा हिंदुस्तान में हयातियाती टेक्निक का सबसे बड़ा इदारा है। कौन सा? बायोकॉन। किरण मजुमदार शाह बेंगलुरु के रहने वाले हैं। बेंगलुरु में जो है बाइकॉन टेक्नोलॉजी कंपनी या बाइकॉन लिमिटेड करके उसकी चेयरपर्सन भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने 1978 में एक छोटी सी जगह जहां पर के किराए की एक मोटर गाड़ी रखी जा सकती थी, वहां से उन्होंने इस इदारे का आगाज़ किया। कई एक मसाइल का सामना किए बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारे और किरण मजुमदार शाह ने हयातियाती तबियात के टेक्निक को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की है। तो प्यारे तुलबा, ये थे हमारे चंद एक अहम सनदकार। कौन कौन से पढ़े हम यहाँ पे? प्रताप रेड्डी, जिन्होंने अपोलो मेडिकल कॉलेजेस की बुनियाद डाले। उसी तरह से नरेश गोयल, जेट हवाई जहाज। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस। वर्गीस कुरियन, सफ़ेद इनकलाब के बाबा आदम। उसी तरह से जो है यहाँ पे धीरू भाई अंबानी, अजीम प्रेम जी, एकता कपूर, किरण मजुमदार शाह, ये हमारे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट या सनदकार हैं। चलिए इन पे थोड़े से सवालात पूछते हुए अपनी क्लास का इख्तिताम करेंगे। चलिए देखेंगे कौन कौन लेसन को समझा है। हाँ, चलिए चंद एक सवालात का जवाब दीजिए। ये सेकेंड राउंड है हमारे साथ। सबसे पहले, अपोलो मेडिकल कॉलेज ग्रुप किसकी देन है? अपोलो मेडिकल कॉलेज ग्रुप किसकी देन है? अपोलो मेडिकल कॉलेज का आगाज किसने किया है? जल्दी जल्दी, अभी अभी सुने हैं, याद है ना? यस, माशाल्लाह, जल्दी जवाब दिए, वेरी गुड। अपोलो मेडिकल कॉलेज ग्रुप के किसकी देन है? इसका आगाज किसने किया है? माशाल्लाह, सही जवाब डॉक्टर प्रताप रेड्डी, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यस, नस्डक में रजिस्टर शुदा हिंदुस्तान का सबसे पहला टेक्निकी इदारा कौन सा है? नस्डक में रजिस्टर शुदा हिंदुस्तान का सबसे पहला टेक्निकी इदारा कौन सा है? यस, हिंदुस्तान का सबसे पहला टेक्निकी इदारा जो कि नस्डक में रजिस्टर्ड किया गया है। एक क्लू दो, नारायण मूर्ति का इदारा कौन सा है? माशाल्लाह, सही जवाब इन्फोसिस। कौन सा इदारा है? इन्फोसिस। किसने शुरुआत की थी इसकी? नारायण मूर्ति ने, वेरी नाइस। चलिए अगले सवाल की तरफ। सफेद इनकलाब का बावादम किसको कहा जाता है? सफेद इनकलाब का बावादम किसको कहा जाता है? माशाल्लाह, ये जवाब जल्दी निकला, वर्गीस कुरियन, सही जवाब। माशाल्लाह, सही जवाब, सबके जवाब आज सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यस, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिजाई राहों वाला जेट एयरवेज, इसके बानी कौन है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिजाई राहों वाला इदारा कौन सा है? वो जेट एयरवेज। इस जेट एयरवेज के बानी कौन है? यस, जल्दी जल्दी लिखिए तलबा, कमेंट में लिखिए, टाइम हो रहा है। यस, कौन है? नरेश गोयल, माशाल्लाह, सही जवाब। चलिए अगले सवाल की तरफ। दूरदर्शन की मलिका या बालाजी टेलीफिल्म की मलिका किसको कहा जाता है?
बालाजी टेलीफिल्म की मलिका किसको कहा जाता? जल्दी मिल गया जवाब, एकता कपूर। राइट आंसर, माशाल्लाह। चलिए और एक सवाल, विप्रो टेक्निकी इदारे के सदर कौन है? विप्रो टेक्निकी इदारे के सदर कौन है? यस अजीज बच्चों, चलो जल्दी जल्दी लिखिए, विप्रो टेक्निकी इदारे के सदर कौन है? माशाल्लाह, सही जवाब अजीम प्रेम जी। कौन है? अजीम प्रेम जी, सही है। चलिए आखिरी सवाल, किरण मुजम्दार शाह का जारी करदा टेक्निकी इदारा कौन सा है? किरण मुजम्दार शाह का जारी करदा टेक्निकी इदारा, जो उन्होंने बेंगलुरु के मुकाम पर जिसका आगाज किया था, वो टेक्निकी इदारा कौन सा है? माशाल्लाह, सही जवाब कौन सा है? बायोकॉन। माशाल्लाह, सही है। तो प्यारे तुलबा, बाप समझ में आया है, लेसन समझ में आया ना? चलिए चंद एक अहम सवाल जो है होमवर्क के तौर पर जल्दी जल्दी लिख लीजिए। चलिए पहला सवाल लिखिए, बासलाहियत कारोबार एक तख्लीकी अमल है, कैसे? जल्दी लिखिए, बासलाहियत कारोबार एक तख्लीकी अमल है, कैसे? वजाहत के साथ लिखना है, 4 मार्क्स में आएगा। दूसरा सवाल, बासलाहियत कारोबार या सनतकार के खुसूसियात बयान कीजिए। बासलाहियत कारोबार या सनतकार के खुसूसियात बयान कीजिए। अगला सवाल, मुल्क की मौशी तरक्की में सनतकार एक अहम रोल निभाते हैं, साबित कीजिए। मुल्क की मौशी तरक्की में सनतकार एक अहम रोल निभाते हैं, साबित कीजिए। अगला सवाल, हिंदुस्तान में सनतकारों के तरक्कियाती इदारे कौन कौन से हैं? फहरिस्त बनाइए। उसी तरह हुकूमत की जानिब से खुद रोजगारी को तरक्की देने वाले इदारे कौन कौन से? आखिरी सवाल, हिंदुस्तान के अहम सनतकारों के तस्वीर इकट्ठा करके इनकी सवाने जिंदगी के अहम नुकात लिखते हुए एल्बम बनाइए और इस सरगर्मी को आपके असातिज़ा को दिखाइए। तो अजीज तलबा, ये थे आज के अहम सवाल। चलिए आज की क्लास का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप सवालात के ज़रिए से मुझे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। जो नहीं समझ में आया सवालात बना के रखिए, अगली क्लास में पूछिए, उसके जवाब दिए जाएंगे, या अपने असातिज़ा के ज़रिए से ग्रुप में भी आप भेज सकते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।